बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, I am here Dr. Muhammad Javed Aftab with the lecture series for the course of Curriculum Adaptation for the Special Needs for the B.Ed Honor Special Education Semester 4. My dear students, today we will be discuss about the curriculum adaptation for the children with different disabilities. We will discuss the different factors which we have to consider regarding the adaptation in the curriculum for the children with disabilities. My dear student, before going to our formal discussion, I want to somehow discuss about the disabilities. Disabilities can be temporary and such as broken arm, relapsing and remitting, or long term. So there are many types of the disabilities that has been included: hearing loss, low vision or blindness, learning disabilities such as attention deficit hyperactivity disorder, dyslexia, and dysgraphia, dyscalculia, and dyspraxia, and etc. Mobility disabilities, chronic health disorders such as epilepsy or इसके अलावा diabetic or migraine और इसके अलावा psychological or psychiatric disabilities such as mood, anxiety, and depressive disorder or post-traumatic stress disorder, Asperger disorder, and other autism spectrum disorders, and also include the traumatic brain injury. So, my dear students, the student with may have the disabilities that are more or less apparent. For instance, you may not know that a student has epilepsy or a chronic pain disorder unless she chooses to disclose or an incident arises with the child of disability. These hidden disorders can be hard for students to disclose because many people assume that they are healthy because they look fine. In some cases, the student may make a seemingly strange request or action that is disability related. For example, if you ask the student to rearrange the desk, a student may not help because he has a torn ligament or a relapsing and remitting condition like multiple sclerosis, or a student may ask to record lectures because he has dyslexia and it takes longer to transcribe the lectures. My dear students, you have to also keep in mind the student disclosure of a disability is always voluntarily. Voluntary, however, student with disability may feel nervous to disclose sensitive medical information to an instructor. Often students must combat negative stereotypes about their disabilities held by others and even themselves. For instance, a recent study that has been conducted by Me and Stone 2010 on disability stereotypes found that undergraduates with and without learning disabilities are rated individuals with learning disabilities as being less able to learn or of lower ability than students without those
disabilities. In fact, students with learning disabilities are no less able than any other student. They simply receive, process, store, and are response to information differently. Similarly, the student with physical disabilities face damaging and incorrect stereotypes such as that those who use a wheelchair must also have a mental disability. Additionally, those students with hidden disabilities like epilepsy or chronic pain frequently describe awkward situations in which others minimize their disability with phrases like, "Well, you look fine," etc. Uh, in Barbara Davis' tool for teaching, she explained that it is important for instructors to become aware of any biases and stereotypes may have absorbed. Your attitude and values not only influence the attitude and values of your student, but they can affect the way you teach, particularly your assumptions about students, which can lead to unequal learning outcomes for those in which classes. As a way to combat these issues, she advises that instructors treat each student as an individual and recognize the complexity of diversity. My dear students, it's very important uh, to learn as well that how uh, the factors affecting the curriculum adaptations. There are several factors that you will need to consider in adapting the curriculum adaptation for the children with disabilities. My dear students, first of all, let we have to check how we have to adjust the material for the children with disabilities. First of all, I have to in generally let you know how the material can be modified for the children with disabilities. First of all, I want to share with you the alternate mode of material. मैं आपको एक छोटी सी आपसे लिस्ट शेयर कर रहा हूँ लाइक यूज अ कैलकुलेटर and use manipulatives, cut and paste, use overlays, ja acetate on text page, enlarge shrink material, and use the computer, build models, cut pictures from the different magazines, newspapers, previous books, old books वगैरह, draw pictures, and the tape recorder, and dictate to scribe, etc. ये हमारे पास ऑल्टरनेट वेज हैं कि आप किस तरह से जो है वो उनको एक डिफरेंट मोड आप जो है वो कैसे दे सकते हैं। तो वेरी स्पेसिफिकली ये भी हमारे पास जो पहली आप जिस स्लाइड पर इस वक्त आप मौजूद हैं तो आपको देखने में आसानी होगी कि नंबर 1 पर हमने जो चीज़ें देखी हुई हैं उसमें हमारे पास ये भी है कि हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इसके ऊपर थोड़ी सी जैसे हमने अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसेक्टिव डिसऑर्डर के ऊपर भी हमने बात की थी कि हम किस तरह से उस डिसेबिलिटी के लिए जो है वो हम देख सकते हैं। अब चूंकि हम ओवरऑल डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं जेनेरिकली तो इसमें अगर आप मटेरियल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमने देखना है कि उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होना चाहिए, उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए और उस मटेरियल का सीक्वेंस क्या होना चाहिए
जो हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को देंगे और उनके लिए करिकुलम अडेप्टेशन के प्रोसेस में शामिल होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन कि वी हैव टू गिव द शॉर्टर असाइनमेंट्स ऑलवेज, बट कीप इन माइंड दैट शुड बी फ्रीक्वेंट। हम ज़्यादा असाइनमेंट्स देंगे लेकिन हमारी वो असाइनमेंट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, यानी हमारे पास शॉर्ट असाइनमेंट्स होंगी, छोटी असाइनमेंट्स होंगी और कंपैरेटिव टू अदर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़ के कंपैरेटिवली शॉर्टर होंगी, लेकिन हम उन्हें फ्रीक्वेंटली देंगे ताकि उनका अटेंशन स्पैन और बाकी चीज़ों का जो है इशू ना बने। And the second one is shorten the length of the assignments to ensure the sense of success। जैसे ऊपर भी हमने कहा कि हमारी जो है वो शॉर्टर असाइनमेंट होगी। शॉर्टर असाइनमेंट हम उन्हें इसलिए देना चाहते हैं कि हम उन्हें इंश्योर कर सकें कि वो अगर अपने छोटे छोटे टास्क के अंदर वो उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएंगे तो उन्हें फिर बड़ी असाइनमेंट का इशू नहीं होगा। तो इसलिए छोटी असाइनमेंट्स का ये फ़ायदा है कि वो उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएंगे, टीचर के लिए इमीडिएट फीडबैक देना उनको आसान होगा, जिससे उन बच्चों को अपनी गलतियों का एहसास हो सकेगा और वो उसके नतीजे में अपने आप को बेहतर तौर पर इम्प्रूव कर सकेंगे। थर्ड वन हमारे पास ये है, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले आपसे एक लिस्ट शेयर की है कि कॉपी एंड पेस्ट उसमें शामिल है। तो यहाँ पर यह कि आप जो भी उनकी बुक है, कोई वर्क बुक है, आप उसको कॉपी करवा लें, उन चैप्टर्स को, टेक्स्ट बुक को कॉपी करवा लें, वर्क बुक को कॉपी करवा लें, या जो भी बुक है जिसके ऊपर बच्चे ने काम करना है उसको कॉपी करवा लिया जाए और उसको हाइलाइटर्स के ज़रिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट कर दें। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप उनको हाईलाइट कर दीजिए। उसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस भी हो सकती हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो आप जिन चीज़ों को जो आपके उस लेसन को सीखने के लिए जो आप जिसको समझते हैं कि दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू टीच दैट लेसन, आप उनको बच्चे को हाईलाइट कर दीजिए। नंबर 4 पर है कि हमें जितना भी अननेसेसरी मटेरियल है, हम जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो कि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम इसमें सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ भी बच्चे का होगा वहाँ पर कोई भी अननेसेसरी मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा मिक्स डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हों, तो वहाँ पर अगर उनके पास एक्स्ट्रा मटेरियल उनकी टेबल पर मौजूद होगा तो वो इस बात का अंदेशा हो सकता है कि बच्चों को वो उनकी अटेंशन स्पैन को डिस्कार्ड कर सकता है, अटेंशन स्पैन उनके लिए मसला बन सकता है। तो इसलिए वो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे, उनकी लर्निंग में उनको इशू आए। तो आप जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके डेस्क के ऊपर और उसके गिरदोनवा में उनको रिमूव कर दीजिए और उसकी अटेंशन को ये गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका माइंडसेट जो है वो सिर्फ अपने वाइट बोर्ड की तरफ, इंटरेक्टिव बोर्ड की तरफ और टीचर की तरफ रख सकें, ताकि जो बाकी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ना जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको चाहिए कि स्टूडेंट को जो फीडबैक है वो इमीडिएटली आपको देनी चाहिए, और इमीडिएटली देने से ये है कि आप उसको जो है वो एक तो ग्रेटिफिकेशन है और दूसरा ये है कि अगर आप उसको, जैसे हमने कहा कि आपने उसे शॉर्टर असाइनमेंट देनी है, बस फ्रीक्वेंट देनी है। शॉर्टर का मतलब ये है कि जब वो एक छोटा टास्क है वो जल्दी से सीख लेगा। अगर अगर आप उसको फौरी तौर पर जो है वो उसके ऊपर फीडबैक नहीं देंगे और उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो ये मुमकिन है कि जो गलती प्रीवियसली एक लेक्चर के अंदर हो रही है, एक उसने टास्क कंप्लीट किया है, या लेट्स से उसने मैथमेटिक्स का कोई जो है वो एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो उसके अंदर जो है वो उसके लिए जो है वो मसला बनेगा। तो हम रादर देन कि वो बच्चा दोबारा अपनी जो है वो मिस्टेक रिपीट करे, हम उसकी मिस्टेक की रेपिटेशन से बचने के लिए हम उसको इमीडिएट फीडबैक देंगे, जिसके और बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं।
तो हम उसको इमीडिएट फीडबैक देंगे ताकि उसकी उसकी जो है वो मोटिवेशन भी कायम रहे और उसकी जो करेक्शन है वो भी टाइमली पॉसिबल हो सके, ताकि वो नेक्स्ट टास्क के अंदर अपनी मिस्टेक को रिपीट ना करे। एंड सेकेंडली नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें स्टूडेंट को डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे मैंने आपसे अभी अभी एक जो लिस्ट शेयर की है, मैं दोबारा उसको याद दिलाना चाहूँगा आपको। उसके अंदर मैंने ये कहा कि आप कैलकुलेटर्स प्रोवाइड कर दें, रिकॉर्डिंग के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर दें, ताकि बाद में अगर वो उसको इश्यू आता है तो वो दोबारा उन चीज़ों को सुन सके और आपकी सपोर्ट में भी एक तरह से इसमें इजाफा हो सकेगा। जब आपकी सपोर्ट में इजाफा हो सकेगा, उसका बच्चे को भी फ़ायदा हो सकेगा, आपका टाइम भी सेव हो सकेगा और बच्चे के लिए जो अडेप्टेशन का हमने शुरू दिन से इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि हम उसकी सपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे, उसके जो इंस्ट्रक्शनल टाइम है उसको इंक्रीज़ करेंगे, तो उसमें यहाँ पर मदद मिल सकेगी हमें। तो इसलिए हमें अपने स्टूडेंट्स को जिनको करिकुलम अडेप्टेशन की ज़रूरत है, उसको हम सेवरल अल्टरनेटिव्स देंगे जो कि उसकी लर्निंग को बाकी बच्चों की लर्निंग के लेवल के करीब ला सके। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रेक असाइनमेंट्स डाउन टू स्मॉलर यूनिट्स। ओके, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट मामला हो सकता है कि अगर हमारे पास 5 लेट्स से, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 5 प्रॉब्लम्स एट ए टाइम है, जो 5 सेंटेंसेस है और अगर so they can feel success, receive immediate feedback if they are doing the assignment incorrectly and direct their energy to more manageable task। भाई देखें, अगर आपने जो है वो बच्चे को 5 प्रॉब्लम्स दे दिए हैं, तो 5 प्रॉब्लम अगर मैथमेटिक्स के हैं लेट्स से, आप उसको टास्क वन बाय वन उसको करवा लें। एक टास्क किया, उसको आप चेक करें, उसके ऊपर से फीडबैक दें और इमीडिएटली उसे दूसरे को टिक कर दें कि अब आपने ये करना है, ठीक है। जब उसको सेकंड को मेंशन कर दें या उसे पहले से तरतीब लगा दें कि पहला जब आप ये वाला कर लोगे टास्क जो टॉप पे है, उसके बाद ये सेकंड वाला आएगा, उसके बाद ये थर्ड वाला आएगा, उसके बाद ये फोर्थ वाला आएगा, उसके बाद फिफ्थ वाला आएगा। बट आपकी फीडबैक अगेन एंड अगेन, हम जिसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपकी इमीडिएट फीडबैक बहुत इसलिए ज़रूरी है कि उसकी मिस्टेक से बचने के लिए, ताकि वो जो मिस्टेक्स रिपीट कर सकता है उससे उससे उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली फीडबैक उसको दें। द लास्ट वन इज़ कि अगर हम मटेरियल की अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास है कि होल्ड फ्रीक्वेंट इवन इफ शॉर्टर कॉन्फ्रेंसेज विद द चाइल्ड टू अलाउ फॉर क्वेश्चंस, sources of confusion, sense of connection and avoidance of isolation which often occurs if the work is too difficult। काम मुश्किल हो सकता है, उसके टास्क मुश्किल हो सकते हैं बच्चे के, लेकिन अगेन आपका काम है, यू हैव टू टच द वेरी फ्रीक्वेंटली द चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज। उसको अगर आप आइसोलेशन में भी रखेंगे और उसकी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उसकी जारी रखेंगे और साथ उसकी जो है वो सपोर्ट इन द लर्निंग भी आप जो है वो जारी रखेंगे और उसको ये भी बताएंगे कि आप उसके साथ जो है वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड हैं। इसमें मैं आपके जहाँ पर हमारे पास ये हो सकता है कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम है तो माइल्ड डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होंगे, तो मल्टीपल चीज़ें होंगी, लेकिन आप उनको जो है वो कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने, जो हम फ्रीक्वेंटली की बात कर रहे हैं, आप एक बच्चे के पास जाएंगे और वहीं पे उसी के साथ ही करें, बट यू हैव टू गो देयर, टच देम और उसके पास अब शेयर करें, उसको एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ बार बार आ रहे हैं, आप उसको जो है वो तवज्जो और उसको केयर फ्राहम कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं और उसको आपने अगर एक चीज़ पूछ ली है, आप उसे नेक्स्ट टास्क असाइन कर दें, उसे टिक कर दें। छोटी छोटे से क्लूज और छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी सपोर्ट के साथ वो बच्चा आपके साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और इससे मिस्टेक्स के कम होने का जो है वो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है कि मिस्टेक्स जो है वो बहुत कम रिपीट होती हैं। अब हमारे पास ये है कि हम
जो एडजस्टमेंट है, पहले हमने बात किया कि हम मटेरियल के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। हमने मटेरियल की बहुत सारी बातें की थी, जो कुछ और भी आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएंगी। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि स्पेस में, वर्क टाइम में और ग्रुपिंग के अंदर हम कैसे उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। पहली बात इसके अंदर हमारे पास है कि परमिट द चाइल्ड वर्क इन अ क्वाइट कॉर्नर। कॉर्नर कॉर्नर में उसके काम करने का इशू ये है कि ताकि वो, जैसे अभी हमने पिछले जो है वो स्लाइड में बात की है कि उसके पास अननेसेसरी मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर वो एक कॉर्नर में एक साइड पे बैठ के काम कर रहा है तो उसको ये इशू भी इसका रिजॉल्व हो जाएगा कि लोगों की चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, इधर उधर से उसको डिस्ट्रप्शन नहीं हो रही होगी, और उसकी चीज़ों के अंदर डिसऑर्डर नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट कम होगी, और उसको जो बार बार इंटरप्शन हो सकती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और स्टडी कैरल व्हेन रिक्वेस्टेड आर नेसेसरी। ठीक है, this should not be all the time since isolation may have a negative consequences. This technique depends upon the specific learning style of the child who may be less distracted by working under these conditions. अच्छा, उसके बाद ये भी हमारे पास है कि अगर आप किसी भी बच्चे को कंटिन्यूसली आइसोलेशन में रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप कॉर्नर में, उसको कॉर्नर में जगह दे दें ताकि उसकी इंटरप्शन कम हो। आप कहते हैं भाई अब हमने इसको कॉर्नर में जो जगह देनी है इसके लिए हम ये क्यों नहीं करते कि हम इसके लिए अलग एक रूम फिक्स कर देते हैं जहाँ पर से बिल्कुल इंटरप्शन ना हो और जो वहाँ पर बैठकर काम करता रहे। अब ये जो आपके आइसोलेशन है, इंटायर इंटायर आइसोलेशन है, जिसमें हमने एक बच्चे को बिल्कुल ही अलग से बिठा दिया सेकंड रूम के अंदर, वो उसके लिए मतलब कि ज़्यादा जो है वो डिस्करेजिंग बन जाएगा। उसको लगेगा कि मैं वहाँ पर सीख नहीं सकता हूँ, मेरे मसाइल हैं, और वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक और जगह जो तन्हाई का मामला, उसके लिए जो आइसोलेशन है, वो कुछ देर तो उसको बर्दाश्त कर लेगा जब तक वो बहुत अच्छा बिजी होगा, लेकिन जैसे ही उसको टाइम मिलेगा वो उसके लिए डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाएगी, वो एग्रेसिवनेस उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, एग्जाइटी और डिप्रेशन का मामला उसके साथ शुरू हो जाएगा। इसलिए आइसोलेशन जो है वो, मतलब कि एंटायर आइसोलेशन जो है वो कभी उसके लिए जो है वो पॉजिटिव नहीं रहेगी, उसको प्रॉब्लम उसके लिए आएगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि उसको एंटायर आइसोलेशन में ढालने की बजाय ये ज़रूरी है कि उसको इस कॉर्नर किया जाए। ठीक है, एक कॉर्नर में जगह दीजिए जहाँ वो प्रॉपरली बैठकर अपनी चीज़ों में कम से कम इंटरप्शन के साथ जो वो काम कर सकें। बट अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। अडेप्टेशन के अंदर मैंने बार बार इस बात का इजहार किया है कि आपने ये नहीं करना कि हम किसी एक ख़ास पैटर्न के ऊपर ही रहते हुए करिकुलम अडेप्टेशन करेंगे। अब करिकुलम अडेप्टेशन हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंगली हो सकती है, और वो डिफरेंट हो सकती है, और वो बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के साथ मुंसलिक है। जिस तरह के बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स होंगे उसी तरह की जो है वो बाकी चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर होंगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो करिकुलम अडेप्टेशन है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं पे भी नहीं है। वो स्टूडेंट की ज़रूरियात को देखते हुए, स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को देखते हुए, और आप अपने टीचिंग स्टाइल को देखते हुए, और जो मटेरियल, एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ें उनको सामने रखते हुए आप करेंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अब हमारे पास ये हो सकता है कि आप बच्चे को अगर कॉर्नर में नहीं बिठा सकते, लेकिन आप चूँकि आपने फ्रीक्वेंटली फीडबैक देनी है, तो फ्रीक्वेंट फीडबैक के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसे एक ऐसी जगह पे बिठा लें जहाँ पे आप यानी टीचर खुद उसके करीब हैं। आप उसके बहुत करीब हैं और वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट फीडबैक देना जो है वो आपके लिए बहुत आसान है। और उन बच्चों से आपको उस बच्चे को दूर रखना ज़रूरी है जो कि उसके बिहेवियर को डिस्टॉर्ट कर रहे हों, डिस्ट्रैक्शन का शिकार कर रहे हों, या उसे डिस्टर्ब कर रहे हों। उन बच्चों से हमेशा उसे सेपरेट रखिए ताकि उसकी कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन
और उसकी जो ईज़ उसको फ्राहम करनी है लर्निंग के अंदर, वो उसके लिए जो है वो मौजूद रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आपकी अटेंशन और जो डिस्ट्रैक्शन है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और अटेंशन स्पैन बेहतर होना चाहिए। जब दूसरे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होंगे जो कि विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं, तो वो यकीनन उसके लिए लर्निंग के अंदर बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रहे होंगे, मसाइल पैदा कर रहे होंगे उसकी अटेंशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एक्सेट्रा। तो हम कोई भी हमारे पास इशू जो है वो हो सकता है, तो हम उन तमाम इशू से उसको स्पेयर करने के लिए हम अलग से उसको बैठा सकते हैं, उसको उन बच्चों से सेपरेट कर सकते हैं। और alternate quiet and active time to maintain level of interest and motivation। और दूसरा ये है कि हम उस बच्चे को एक्टिव रखने के लिए टाइम टू टाइम और उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए हम जो है वो अल्टरनेट वेज हम यकीनन उसके लिए इख्तियार करेंगे। और उसके बाद ये भी हमारे पास है कि उस बच्चे के साथ आप एक बात कर सकते हैं, एक मामला जो है वो तय हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग का एक इशू है कि आप उसके साथ जो है वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बात कर लीजिए ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चे के साथ? कॉन्ट्रैक्ट यही है कि आप उसे किस तरह से जो है वो लेके चलना चाहते हैं। आप उसकी एबिलिटीज़ को, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए आप एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं उसके लिए, और उन तमाम चीज़ों के साथ उसको फिर आप अपनी जो असाइनमेंट्स हैं और जो आपका लर्निंग का टाइम है उसको कैसे आपने पॉजिटिव बनाना है, इसके ऊपर आप उससे बात कर सकते हैं। ये मोटिवेशन से भी हो सकता है, फीडबैक से भी हो सकता है, रीइंफोर्समेंट भी उसके लिए हो सकती है, उसकी अप्रिसिएशन भी हो सकती है, और बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ाकार हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ये भी अगेन कि आपके पास आपका जो बच्चा है, आपका जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ है, वो क्या डिमांड करता है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या हैं, वो खाने में क्या चाहता है। और खाने में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कभी उसको चॉकलेट पसंद है तो आप ये बात कर सकते हैं कि हफ्ते में उसे 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। अगर वो अपना काम कंसंट्रेशन के साथ कर रहा है तो रीइंफोर्समेंट के लिए आप उसे जो है वो ये बात कर सकते हैं। यस, हमने पहले ये भी कहा है कि हमने उसका जो वर्क टाइम की बात कर रहे हैं कि वर्क टाइम हम उसका शॉर्ट रखेंगे और उसकी असाइनमेंट्स चूँकि छोटी होंगी तो उसका जो वर्क टाइम हमारे पास शॉर्ट रहेगा, कम रहेगा, ताकि उसका जो अटेंशन यूँ भी उसकी जो गेन करने का एक तरीक़ाकार ये भी है ना कि आपने एक उसके लिए चीज़ें बदल कर आ रही हैं, चेंज होकर आ रही हैं। अगर वो एक ही चीज़ को लेके बैठा रहेगा तो वो भी उसकी अटेंशन स्पैन को डाइवर्ट करने और डिस्ट्रैक्शन का बायस बनेगा। तो इसलिए हमारे पास ये है कि हमने शुरू में ही कह दिया कि उसकी जो असाइनमेंट है वो शॉर्टर होनी चाहिए। तो अगर शॉर्टर होंगी तो यकीनन टाइम पीरियड भी हमारे पास शॉर्ट होगा, लेकिन बट ये है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। पहले हमारे पास कम होगा, फिर थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेंगे, फिर थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का जो हमारे पास बात है हम उसके ऊपर अमल करेंगे और थोड़ा-थोड़ा टाइम उसका जब इंक्रीज़ करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि उसकी अटेंशन स्पैन भी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा देर तक के लिए काम करने का जो है वो आदि भी विद कंसंट्रेशन जो है वो उसको हैबिचुअल हो जाएगा। और लास्टली हमारे पास 7 पे ये है कि मैच द स्टूडेंट विद द पीयर हेल्पर टू हेल्प द अंडरस्टैंडिंग असाइनमेंट्स। आप पीयर जो है वो इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ। इसको आप पीयर सपोर्ट कह सकते हैं, आप इसको उसको पीयर लीडरशिप कह सकते हैं, और आप उसके लिए जो है वो एक जो है वो ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बना के उस बच्चों को जो है वो उसके अंदर असाइन कर सकते हैं, और जो बेहतर बच्चे हैं उनके साथ जो है वो उस बच्चे का इंटरेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो आपस में बात करते हैं उसका जो लर्निंग लेवल है वो भी बहुत ज़बरदस्त उसके भी नताइज देखने के अंदर मिले हैं। तो इसलिए हम उन बच्चों को जब दूसरे अपने क्लास फेलोज़ के साथ असाइन करेंगे, अटैच करेंगे, श्योरली दे विल लर्न बेटर, और उनका जो रेट ऑफ लर्निंग है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये है कि हम उसके जो हमारे पास असेसमेंट है उसके अंदर हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू
allow various ways for students to demonstrate their understanding of scientific concepts such as performing experiment, creating displays, the model displays and model or and tape recording observations. Also, my dear students, there are so many ways. Adapt assessment tools such as paper and pencil test to include options such as oral test, open book test, and test with no time limit. और नेक्स्ट हमारे पास है कि कीप वर्क सैंपल्स ऑन NCR papers and also use computer program that provide uh, opportunities for scientific practice and recording results, and also provide opportunities for extension and practice, and require small amount of work to be completed at a given time. Simply the way questions are worded to much the better level of understanding, or provide functional everyday examples such as building structures to development of forces and etc. माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जब अडेप्टेशन की बात आती है तो अडेप्टेशन से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही हमारे पास हमने अडेप्टेशन करिकुलम अडेप्टेशन से मुराद है कि जहाँ पर जो कंटेंट आपने पढ़ाना है उसको आपने अडेप्ट करना है, वहाँ पर आपने टीचिंग स्टाइल्स को अडेप्ट करना है, टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना है, टीचिंग स्किल्स को अडेप्ट करना है, वहीं पर आपने उसके असेसमेंट स्टाइल्स को भी जो है वो अडेप्ट करना है। ये आपको याद रहना चाहिए, मतलब कि असेसमेंट इज आल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम। तो असेसमेंट भी करिकुलम का हिस्सा है कि असेसमेंट की कैसे जाएगी, कौन करेंगे, किस तरह से करेंगे और किस बिहाफ पर करेंगे, किस उसकी हमारे पास बेसिस क्या होंगी, फाउंडेशंस क्या होंगे, जिनके बुनियाद पर हम जो है वो असेसमेंट कर रहे होंगे। तो लिहाजा इन चीज़ों को भी हमने ख्याल में रखना होगा। तो जैसे यहाँ पर भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि अगर आपके पास ऑडिटरी लर्नर्स हैं तो ऑडिटरी लर्नर्स के लिए जो बेस्ट होता है कि हमने वर्बल ऑप्शन दे देंगे एज कम्पेयर टू रिटन डायरेक्शंस ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्लेस असाइनमेंट डायरेक्शंस ऑन टेप सो दैट द स्टूडेंट कैन रीप्ले देम व्हेन दे नीड। क्योंकि जहाँ पर ऑडिटरी लर्नर्स है तो ऑडिटरी लर्नर्स के लिए सुनना बहुत आसान होता है और वो सुनने में ज़्यादा लर्न करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि उनको टेप रिकॉर्डर के ऊपर असाइनमेंट्स और बाकी चीज़ें देख सकता है कि वो रिप्ले करके चेक कर सकें। एंड गिव स्टूडेंट ऑरल रादर दैन द रिटन टेस्ट, और उनका टेस्ट भी फिर ऑरल होना चाहिए रिटन की बजाय। नंबर 4 पर हमारे पास ये है कि स्टूडेंट डील ऑन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग टेप रिकॉर्डर। मैंने पहले से बात कर दी कि आप टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करें, रिसाइटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द रिकॉर्डर एंड प्ले इट बैक। अब बार बार बच्चों को फ़ायदा ये होता है कि वो इसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन बोलती है रिवाइंड करते हैं, चेक करते हैं, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर सुनते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर पीछे बैक कर लेते हैं, ताकि अगर उनकी जो उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर उन्हें अंदाज़ा हो सके और उसको वो प्रॉपरली गेन कर सकें। हैव स्टूडेंट ड्रिल अलाउड टू देमसेल्फ टू अदर स्टूडेंट्स। और इसके ऑडिटरी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये हैं कि उसमें यह है कि आप ड्रिल अलाउड यानी आप ऊंची उसको पढ़ने की, ऊंची सुनने की, ऊंची उसकी बात करने की प्रैक्टिस शुरू करें, और जो लेसन है, जो चीज़ें हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आप ऊंची आवाज़ के साथ करें ताकि सारे बच्चे उसके अंदर शेयर भी कर सकें। और उन बच्चों को, क्योंकि ये हमारे पास ऑडिटरी लर्नर्स हैं तो ऑडिटरी लर्नर्स नो डाउट सीखने बोलने से ही ज़्यादा सीखते हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। और फाइनली ये है हमारे पास कि अगर ऑडिटरी की बात करें तो हमने कहा कि वो जो चूँकि जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं तो ऑडिटरी लर्नर्स की कैपेसिटी ये होती है कि वो सुनने को ज़्यादा बेहतर तसव्वुर करते हैं, कि सुनने से वो ज़्यादा लर्न करते हैं। इसलिए हमें कि वो अपनी आइज़ को क्लोज करें और सुने कि उन्हें इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन सी दी जा रही है। अब लास्टली हमारे पास है विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स के लिए क्या है कि ये हमारे पास ये बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो प्रेजेंटेशंस को और डिमॉन्स्ट्रेशन को पसंद करते हैं।
तो इनके इनके लिए जैसे अभी हमारे पास नंबर 1 के ये बच्चे ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स प्रिंट होने चाहिए और डिफरेंट कलर्स के अंदर होने चाहिए, और ये जो कलर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव और ब्राइट होने चाहिए। और दूसरा हमारे पास ये है कि जहाँ पर बच्चों को हमें विजुअलाइज करवाने की ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन, हम उन्हें कहते हैं कि वो चीज़ों को देखें, आंखें बंद करें फिर और उसको विजुअलाइज करें कि देखें कि उन्होंने पहले से क्या देखा है, ठीक है, या फिर उनके हाथ में क्या है, वो उन्होंने किन चीज़ों को देखा है कि उनके पास इसकी परसेप्शन किस तरह से बढ़ रही है। विजुअल लर्नर बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। प्रोवाइड विजुअल क्लूज ऑन चाकबोर्ड फॉर all verbal directions, it's very clear. Encourage students to write down notes and memos to themselves concerning important words, concepts and ideas. और दूसरा हमारे पास ये है कि स्टूडेंट्स को इस बात पे हौसला अफजाई होनी चाहिए कि स्टूडेंट जब अपने नोट्स लिए अपने पास रखे और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करे, न्यू वर्ड्स को नोट डाउन करे, और अगर मुमकिन है उसके साथ उनके क्लू भी लिखे ताकि जब वो अपने नोट्स को देखे तो वो चीज़ों को समझ सके। My dear students, thank you very much for the day. This is all for the day. If you have any question you want to ask, you can ask me many more questions, and Google Classroom is available for this purpose as well. You can ask me there, and you can ask me during the lecture as well. Or thank you very much, and stay blessed. दिस इज़ ऑल फॉर अ डे, एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।